Now the next tense is what? We're going to have a new tense today, and the tense is very simple tense, present. One of my favorite tense, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Now, when do we use present perfect continuous tense? Can you please tell me? When do we use it? It is like Something is present continuous tense, but we add timing in this sentence. In this tense, Which one? it is like present continuous tense, but we add timing in this tense. Like since that timing, I am doing it. Okay. But it is not present continuous tense. No? So like I have been doing it since morning. Correct. And in present continuous tense, we only say that I am doing it. I'll show you. How it is quite different because see, you can't merge two tenses together and the students will get confused. By the way, have a look here, all of you. So, present perfect continuous tense is what exactly? Listen to me carefully. What is the formula and what is the definition of it? When an action in the past got perfected, and after getting perfect, even the action is going on in the present as well. This is what present perfect continuous tense. This is called present perfect continuous tense. Okay, So can you write the definition over there? sure. So pay attention. An action is in the past and got perfect, and still continuing. That's called present perfect continuous tense. An action is in the past, got perfected, and still continuing. Means what? We have an action in the past and the result is now, and that result is continuing again. That's called present perfect continuous tense. Apart from this one, continuous tense को हटा देते हैं. Tell me present perfect tense. What is present perfect tense? action in the past and the result is now. Correct. Action in the past and the result is now. This is present perfect tense. Means what? Action finish हो गई, right? Hmm. Action started in the past, then got perfect with the results. Well, With the results. Result हमारे सामने है प्रेजेंट में, अभी अभी फिलहाल में. करेक्ट. अभी प्रेजेंट में अपने पास में रिजल्ट है. Now what is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense is the same. Action in the past got perfected and the result is now, and that result is being continued. will continue. Is that clear? समझा? कोई चीज पास्ट में थी, परफेक्ट हुई और अभी भी कंटिन्यू हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड द फॉर्मूला इज रियली वेरी सिंपल. नाउन और pronoun plus have. Are you with it? Have or he, she, it As plus been. यहाँ पे आएगा been plus verb plus ing because it's a continuous tense plus context. That's it. इतना ही formula है इसका. Noun or pronoun plus have or has plus been plus verb plus ing. I'm going to give you the greatest example that you can understand it well. That now I can say an action in the past. The action past में हुआ था. मेरा example ले लेते हैं. I started teaching in the past at 2011. 2011 में मैंने start किया पढ़ाना. I started teaching in 2011. I have completed many of my batches. Plenty of my batches I have completed. Yes or no? yes. अभी लास्ट वीक में मैंने एक बैच खत्म किया हूँ. उसके 2 वीक पहले भी मैंने एक बैच खत्म किया हूँ. लास्ट मंथ भी मैंने एक बैच खत्म किया हूँ. Means what? I have completed multiple batches. Means what? My action got perfected. Yes or no? Action started Yes. in the past, got perfected. The result is now in front of me. Testimonies है मेरे पास में students का, उन लोग का performance भी है. क्या action अभी भी चल रहा है?
Yes. पढ़ाने का एग्जैक्टली टीचिंग मैंने स्टार्ट किया आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2011 I got perfected a batch 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 multiple batches are perfected in the present 2020 even I have got the result in front of me that my students have been taught मेरे पास में है मेरे पास में result है students का yes or no Yes. actually in the past and the result is now and क्या टीचिंग का काम मेरा अभी भी चल रहा है Yes, sir. Still Yes. इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज दैट क्लियर Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अपन डाल नहीं सकते बिकॉज सामने वाला बंदा पूरा टोटली ब्लैंक हो जाएगा आउट हो जाएगा व्हाई वो बोलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर तो पास्ट का कोई मसला ही नहीं आता आता क्या भाई No, sir. तो इसके अंदर पास्ट का है मैटर इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला noun or pronoun plus have or has plus been plus verb plus ing and that's what statements question and negative we are going to have here for example I plus I plus have. plus Been. been Been. plus Verb plus ing. Plus ing. plus I have been teaching अब दूसरी बात अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता क्या है मालूम है क्या लोगों को समझाने के लिए सिर्फ समझाने यहाँ पे टेंस वी हैव फिनिश्ड द टेंस ओवर हियर वी हैव कंप्लीटली फिनिश्ड द टेंस यहाँ पे टेंस फिनिश एक्चुअली हो चुका है बट जस्ट टू अंडरस्टैंड जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड पीपल पुट दैट द टाइमिंग Timing. ये बताने के लिए अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता था तो लोग टाइमिंग ही क्यों बताते थे बताएंगे क्या नहीं बताएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इससे बहुत ज्यादा अलग है आई हैव बीन टीचिंग अब वहां पर मैं डालूंगा मेरा टाइमिंग आई हैव बीन टीचिंग सिंस कब से पढ़ा रहा हूँ 2011. 2011. आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2011 क्वेश्चन Have I been करेक्ट हैव आई बीन teaching since since 2011 negative I haven't been correct I haven't been teaching since 2011 same case let's have an example with she plus has has been plus verb she has been वो पढ़ते आ dancing. रही है 9 बजे से वो गब्बर के सामने नाच रही है she has been learning वो पढ़ते आ रही हैं कब से भाई she has been learning since Childhood. बचपने से question Has she been learning since childhood? is that clear Yes. and negative she hasn't been learning since childhood. ये बीन के अलग अलग यूसेज में को जरा बताओ ना हमको मालूम नहीं है वो अब यहाँ पे कहाँ बी का कहाँ है उसके यूसेज का देखो मैं आपको सिंपल सी बात है बाय द वे हैव यू अंडरस्टूड द फॉर्मूला हाँ Yes, sir. yes अंडरस्टूड द टेंस एनी क्वेश्चंस टू Yes, sir. एनीवन so since यूज करना जरूरी है मतलब कंपलसरी है मैंने क्या बोला कि आप लोगों को खाली समझाने के लिए वो बाकी तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है उधर ओके सर ओके हाँ खाली बताने के लिए कि देखो मैं इतने सालों से काम करते आ रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ ऐसा खाली बताना है हम लोग को जताने के लिए बाकी अदरवाइज देयर इज नो वे नाउ बी अब बी का मतलब हम लोग को तो बचपन से मालूम होना करना बनना होना रहना बनना करेक्ट अब बीन का मसला क्या अब बीन अलग अलग जगह पे यूज होता है मतलब उसका भी वही है बी थर्ड फॉर्म है बीन बी का बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है बी का बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी करेक्ट नाउ Sir, can you also explain being? being it is what continuous tense में लगता है ओके नाउ अब उसको यूज करने के तरीके अलग अलग हैं आप कहाँ पे उसको यूज करते हैं वो मैटर बहुत ज्यादा करता है नेक्स्ट
I will be. I'm taking the first one. I will be a doctor. मैं डॉक्टर रहूंगा. Correct? He Yes. will be angry. वो गुस्सा हो जाएगा. तो होना, बनना, रहना. Be. Next one, been. Now been we use as a third form, and sometimes been is being used as a formula part in some tenses. कुछ tenses के अंदर third form नहीं बल्कि formula का एक part बन के आता है. For example, have. हर जगह पे have का meaning same है क्या? नहीं. यहाँ पे have का meaning क्या है? कोई बता सकता है? Actually meaning कुछ नहीं उसका उधर वो खाली part है. It is just a part of the rule. Formula. Yes, sir. Yes, Correct. sir. It is a part of the formula. It is a part of the rule. Same case been. Been here. It is a part of the rule, part of the formula. That's it. Same case over here. Been के भी अलग अलग usages हैं as we can use here. For example, I have been. मैं जाकर आया. I have been to Paris. London. Paris. Been to London. जैसे कि हम लोग बोलते हैं I have present perfect tense. Okay. I have completed. Yes or no? I have completed my work. मैं मेरा काम कर चुका हूँ तो मैं वैसे यहाँ पर I have been to Paris. देखो ये रहा टिकट. Action in the past and the result is now. Sir, Paris जाकर आया मैं. I have we been say to I Paris. have gone to Paris. So कोई मसला नहीं मैम. Correct. What's the difference between this? I have eaten or I have had. no difference. No difference. Same case. I have been or I have gone. No difference. Is that clear? Yes, sir. So been we can use like this. Next one. अब और ध्यान दीजिए please. Being कब use करते हैं? तो ये बीन सिर्फ जाके आने के लिए यूज हो रहा है क्या यहाँ पे? बाकी इस्तेमाल है नहीं उसका कोई दूसरा? कुछ भी नहीं है. वो जाके मैं होकर आया हूँ ऐसा बोलने का मतलब है उसका. For example आप ऐसे भी use कर सकते हैं. I have been busy. मैं इतनी देर से बिजी हो रहा था. बिजी था, होना, रहना, बनना. तो बिजी बन रहा था. अब वो ट्रांसलेट तो जमता नहीं उसका, बट मीनिंग उसका हुई आई हैव बीन बिजी सिंस माय प्रोजेक्ट स्टार्टेड. जब से मेरा But sir, प्रोजेक्ट for स्टार्ट हुआ. past we have to use had. I had been busy. दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कुछ Sir, भी But यूज sir, कर. what is the actual meaning of been in this sentence? आई हैव बीन बिजी. आई हैव बीन बिजी मतलब यानी मैं अभी कैसे बोलूँ, मैं आपको ट्रांसलेशन कैसे करूँ इसका. मैं सुबह से अभी तक के बिजी होते आ रहा हूँ. अभी उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं वो तो पता नहीं मुझे. मैं सुबह से बहुत बिजी था, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन? बोल सकते हैं बट हिंदी में उसका मीनिंग यार अलग होता है. उसे ट्रांसलेशन नहीं कर सकते अपन. So थोड़ी सी which is समझना. this tense, God? Pardon? Which is this tense? I have been busy. Present perfect tense. Present perfect. Okay, sir. Yeah. Now where have you been? आप कहाँ थे इतने Can दिनों we से? use any other verb in place of been? जरा I कंफ्यूजन है बीन के अंदर ये. कंफ्यूजन कुछ नहीं है, खाली इतना है कि उसका जो ट्रांसलेशन हिंदी में एग्जैक्टली नहीं हो रहा है. आई हैव बीन बिजी उसकी जगह पे अलग वर्ड आई हैव. I don't think so that we have any other word like this. क्योंकि होने रहने बनने के लिए क्या लगाएंगे आप दूसरा वर्ड? Sir, रहने के लिए leave. बी. Leave. L-I-V-E. नो वो वाला रहना नहीं है ये. बनने के लिए और क्या लगा सकते हैं आप लोग Become. वर्ड. We can't use that become over here. I've become busy मतलब मैं बिजी बन गया था. वो बनना अलग हो गया मैम. ये बनना और होना ये खुद का है, ये वो अलग चीज है. तो सिंपल अपन आई वाज बिजी नहीं बोल सकते वहाँ पे? मैं बिजी था, सर अब तक हिंदी में बिजी होते आ रहा हूँ. I've हिंदी में been busy. मैं व्यस्त रह रहा हूँ. मैं व्यस्त रह रहा हूँ. Yes, I've sir. been nice.
बोल सकते गूगल हैं पे तो आपका भाई नहीं है। अभी तो ट्रांसलेट करना भाई। नहीं, ये सही है, बट ये सही है, मैं व्यस्त रह रहा हूँ आजकल। आई हैव सही। बीन बिजी, आई हैव बीन बिजी विथ माय वर्क। करेक्ट है। उसी जगह पे दूसरा वर्ड नहीं लगा सकते हम लोग। और आप जो बोल रही हैं मैम, बिकम और लिव, वो अलग चीज के लिए। मैं ऐसे बोलूँ क्या, आई लिव एंग्री, मैं गुस्सा रहता हूँ, बोलेंगे नहीं, No, sir. उल्टा हो जाएगा मैम वो। इंग्लिश के अंदर हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, जहां ट्रांसलेशन की गाड़ी आई मतलब अपनी गाड़ी फिसल गई। ओके, नेक्स्ट वन, बीइंग। व्हेन डू वी यूज बीइंग? यहाँ पर द हो, एक्शन इज गोइंग ऑन। करेक्ट। अब जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, यू आर, आप हो रहे हो, आप बीइंग हो रहे, यू आर बीइंग रूड टू मी। आप मुझसे, ट्रांसलेशन मुझसे नहीं हो रहा है, आप समझ के रहो फिलहाल इसको। आप भी। यू आर बीइंग रूड टू मी। अब वी आर बीइंग क्वाइट बिजी नाउअडेज। nowadays, आजकल। वी आर बीइंग बिजी, हो रहे हैं हम लोग। सो दिस इज व्हाट, हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? Sir, what is the difference between I am busy and I have been busy? आई एम बिजी, आई हैव बीन बिजी, सिंपल। व्यस्त हूँ, मैं कौन व्यस्त, बताएगा भाई? मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हो रहा हूँ, रह रहा हूँ। आई एम बिजी, ओ हो रहा हूँ नहीं, हो हजरत, हो रहा हूँ रह नहीं। रहा आई एम बिजी, हूँ। वहाँ कहाँ पर प्रिया, व्हाट सेंस इज दिस? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। आई एम करेक्ट, सिंपल प्रेजेंट। एंड मैडम वापस से, आई हैव बीन बिजी, राइट मैडम? Yes, sir. हाँ यही था ना, Yes, sir. आई हैव बीन बिजी। इसके अंदर डिफरेंस क्या है? नाउ माय क्वेश्चन इज दैट टू यू, आई एम अ स्टूडेंट, simple present tense है, right? Yes, sir. And I have been a student, मैं स्टूडेंट रहा था। I've been busy, अब तक होते आ So, रहा था, अभी नहीं हूँ। और I am busy means what? I am busy right now, अभी मैं busy हूँ। अब तक हो रहा था पर अभी नहीं हूँ। I Sir, have now been a, also we are students. So can we say I have been a student? I have been a child, अब मैं child तो नहीं हूँ। So I have been a child, मैं एक Sir, in that बच्चा। condition we have to use had. I had been a child Had क्यों यूज करना है मैम? आपको have नहीं यूज कर सकते, ऐसे because क्यों it is लगता है? in past और have कब यूज होता है फिर? for present. ऐसे किसने बोला? वापस जाते हैं ऊपर, देखो फॉर प्रेजेंट। मैडम आप थोड़ी कंफ्यूज हो रही हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। क्या लिखा है मैम? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एन एक्शन इन द पास्ट। प्रेजेंट है so तो फिर those पास्ट। two sentences were present perfect only have, and the third form is been of verb. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एक्शन इन द पास्ट आना ही आना है मैम वो, एंड द रिजल्ट इज नाउ। तो रिजल्ट अभी फिलहाल में आपके सामने है, आई हैव बीन बिजी, सो आई हैव बीन अ चाइल्ड बट नॉट नाउ। So बच्चा in था the देखो, present perfect continuous tense, an action is in the past and got perfect and still continuing in present, right? That he will करेक्ट, come. एग्जैक्टली राइट, दिस इज इट। Action in the past got perfected here, and in the present it is getting continued. No, sir. In the definition, you didn't add their present, so I was just confirming it. Ah, so Action sorry. in the past and perfected in present and still continue. Right? Still continue. If you want, so you can just alter it. No problem at all. Yes, sir. No problem. Action in the past got perfected it and still continuing in the present, right? So perfected Yes, in sir. past or present. Perfected in the result is now there in the present, and that is being, that result is being
continuous. So we can say it got perfected in the present. It got, yes. Yeah, simple. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. All right. So guys, we'll stop it here today, and we are going to continue the tenses or sentences and all on Monday. Sir, in Practice both it. the cases, the action should be perfect in present only, right? Like in present perfect tense also, and present perfect continuous tense also. Exactly. The difference between present perfect and present perfect continuous tense, the major is what? In present perfect tense, the action is getting stopped, right? Yes, sir. Hmm. And in But present perfect tense, continuous tense, it is going on. yeah, it is what continuing that action. Okay. Simple. एक डाउट है मेरा छोटा सा. जी, फरमाइए. सपोज का यूज मतलब कैसा करेंगे अपन? अभी अपने कॉन्टेक्स्ट पे बहुत मैटर करता है. फॉर एग्जांपल, आई सपोज टू. एक सेंटेंस मैंने सुना था, उसका मीनिंग नहीं समझा मेरे को. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, मतलब क्या? आपको ये नहीं करना चाहिए. आई सपोज टू डू दैट. आई एम सपोज टू डू दैट. सॉरी, आई एम सपोज टू डू दैट. मुझे ये करना चाहिए. इट इज माई ड्यूटी. यू सपोज टू डू दैट. तो फिर You, हैव टू भी है ना अपने पास ड्यूटी बताने के लिए. भाई अल्टरनेटिव. सिंपल. मैं अच्छा. वही तो अल्टरनेटिव है उसका. फॉर एग्जाम्पल, कैन की जगह पे कुड यूज कर सकता हूँ मैं. Yes. सपोज अपन पहले क्या, जब सबसे पहला इसका बारे में जब सुने थे ना, सपोज का मतलब था कि फर्ज करिए, उसके लिए तुम यूज करो सपोज. हाँ, वो फर्ज करिए बोल सकते. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. आपका काम नहीं है कि आपको वो नहीं करना चाहिए. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. और यू आर नॉट नॉट सपोज टू डू दैट. मतलब तुमने ये नहीं करने मांगा था ऐसा. हाँ, नहीं ना, कम नहीं करना चाहिए. अब उसको मैं बोल सकता हूँ, यू शुडंट डू, ऐसा भी चल सकते हैं. don't have to do that. आपको करने की जरूरत नहीं है. और you didn't have to. डू दैट. अल्टरनेटिव है भाई, अल्टरनेटिव है. कैन की जगह पे कुड क्यों यूज कर रहे हैं अपन, किसी को रोक नहीं सकते. कुड की जगह पे मे की यूज कर रहा है, रोक नहीं सकते. मर्जी है. मतलब सपोज का ऐसे कुछ बहुत भारी नहीं, नॉर्मल सिंपल सा अल्टरनेटिव बस. एग्जैक्टली. कैन आई कम इन. Could I come in? Come in. May I come भाई in? रोक मुझे. May I come in? Might I come in? भाई मैं मेरे मर्जी का मालिक. May I come in? अब ऐसा बोलते नहीं माइट आई कम इन. क्यों भाई? क्योंकि इट इज व्हाट? ओल्ड Fashion. Is that clear? Yes. Can you explain the question which I texted? Sir, Pardon? Can you explain the question which I texted? Grave and acute accents. नहीं मैम, ये आज नहीं, इसको मैं मंडे के दिन एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टॉपिक. मैं उसका कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ, चाहिए तो. इधर लंबा टॉपिक है बहुत वो. say suppose. I can't explain it right now. Both are the same, or is there any No. difference? Both are not the same. So Agar the same, second form of the verb will only be used in simple past tense, right? And it won't be used otherwise. yeah, exactly. Okay, थे. sir. इस वर्ड के अंदर है, देखो ये. इसके अलावा पूरा एग्जैक्टली इसमें सेम नहीं आ रहा है. हाँ, नहीं दिखा रहा है वो. Alakar. पे नहीं आ रहा है वो एग्जैक्टली, बट आई विल शो यू ऑन मंडे. मंडे के दिन दिखाइए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये. ओके, सो प्लीज practicing at home, and if you have any questions you can ask me directly. We'll see Sir, you on Monday. वो being और being human में मतलब कौन सा, मतलब दोनों में स्पेलिंग सेम है क्या, वो अलग अलग है? Same. इंसान बन रहा हूँ, 4 औरतों को मार चुका हूँ, लोगों को फुटपाथ
गाड़ी पे से उड़ा चुका हूँ and now I'm being human. Being human. दारू पी Yes. रहा हूँ, वो छेड़ रहा हूँ, being human. What a shame. Sorry, see you. Cheerio.